In fact, you will also be surprised that India may be highest percentage of suicides are जो कैटेगरी में है वो you'll be surprised to hear which is housewives. Highest is housewives. Second highest is teenagers, and उनमें से teenage boys and then teenage girls. My God, teenagers are killing themselves for point one mark, 2 mark. So कहीं ना कहीं we are putting lot of pressure of looking like something apart and not believing in who you are. तो मुझे लगता है हम बहुत प्रेशर डाल रहे हैं अपने आप पर। टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना है, उसका स्लेव नहीं बनना है ना। नाउ चिल्ड्रन आर गेटिंग एडिक्ट। सो व्हाट इज टेक्नोलॉजी नाउ डूइंग इज सी, जब भी कोई चीज तरक्की करती है, वैसे जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे, सो हमने कोई रीजन से बनाए थे, हमने जो भी वी हैव मेड लॉट ऑफ डिस्कवरीज, लॉट ऑफ इनोवेशंस, देयर ऑलवेज हैज बीन अ रीजन। सो Solution can what is the possible solution? What to do? पॉसिबल सॉल्यूशन इज दैट कुछ कुछ जैसे हमारे थेरेपी में, मैं आपको एक एक्सरसाइज, एक एक्टिविटी बताती हूँ, मे बी इट विल हेल्प योर लिसनर्स आल्सो। जैसे आप Hi friends, my name is Bhavya Mangla. I welcome you on the 41st episode of Unfiltered Conversation. We started this series with the objective of calling people from different background and different type of industries and try to understand their perspective about life. When we talk about life, life has become quite unpredictable. Maybe around 30 years, 40 years back, everything was very predictable, that you will born, then you'll go to college, then you will get married, have children, and then you'll retire, and then this is the way in which things will happen. But if you see in the last 30, 40 years, things have changed drastically. Whatever was normal has become abnormal. Whatever was considered to be a routine is considered to be a boring thing. Now, we always say that change is the only constant thing in life and something that is happening. But then it is also resulting in many things. It could be depression, loneliness, it is leading to suicide, it is leading to breakup in the relationship, and so many things are happening because of that. Now, to understand more about the mental health, to understand more about why it is happening and what can be done with respect to that, we have a very interesting guest with us. She is Dr. Kavita Bhutani. She has a total experience of more than 24 years, out of which in the last 6 years, she is specifically practicing psychology. She has done master's and PhD in psychology. And she is going to let us know about that, what all these mental health issues are all about, what are the challenges that we are facing, and what are the possible solutions are there with respect to that. Dr. Bhutani, how are you doing? I'm doing very fine. Thank you for having me over and giving me this opportunity to speak to people directly. Now, these days, mental health is becoming the most important topic. As per Hmm. the WHO, it is being said that one in every four person is suffering from depression or some kind of mental illness here and there. And India, if we talk about specifically, this is mostly affected. Now, it is not something that was not existing earlier, but I think the rate and the pace is increasing. Hmm. So, what do you think about it? Since you're dealing with people, you're meeting different people, what do you think about it? ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिकॉज WHO ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले समय में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट पैंडेमिक। In fact, suicide is one of the highest reasons why we are losing people across the globe. In fact, you will also be surprised that India may be highest percentage of suicides are जो कैटेगरी में है वो you'll be surprised to hear which is housewives. Highest is housewives. Second highest is teenagers, and उनमें से teenage boys and then teenage girls. So अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन और जो उस जनरेशन के पिलर हैं उनको इतना डिप्रेस्ड सिचुएशन में लाके खड़ा कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वी हैव अ प्रॉब्लम विद आवर इकोसिस्टम दैट इज बीइंग क्रिएटेड। एंड यस, रेट तो परेशान होने का बढ़ ही रहा है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर इनटू गैजेट्स, पीपल आर गेटिंग मोर इनटू कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल। बिकॉज हम पहले क्या होता था, हमारे घरों में दीवार होती थी और दीवार के पीछे हम देख नहीं सकते थे, बट देन नाउ वी हैव फेसबुक्स, वी हैव ऑर्कुट्स, वी हैव social media, so we can peep into everybody's life at a daily basis every minute. So we are like on a display to each other every time. So that being on a display is in itself a reason of causing a lot of stress and isolation.
ग्लोबली हम कनेक्ट कर गए हैं। पहले आपने जाना था तो बहुत कम आप बाहर जाते थे। अभी आप देखो हर बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है, जस्ट फॉर द फैक्ट ऑफ गोइंग। वेकेशंस के लिए आप आजकल कॉम्पीट करते हैं कि आपने कितने कंट्रीज़ कवर कर लिए, हमने कितने कर लिए, यू नो, भले आपने अपने देश में चीज़ें चीज़ें देखी हैं या नहीं देखी। सो बिकॉज़ वी आर बीइंग कनेक्टेड, तो हम कनेक्ट हो गए हैं इसलिए हम दूर-दूर भी हो गए हैं। Because it's very easy now to leave your parents or leave your children and have a nuclear setup. एक कम्युनिटी बना लेना बहुत आसान हो गया है। सो बट इस रेस में वी आर फॉरगेटिंग दैट एक चीज़ होती है जो ऑर्गेनिक होती है, जो अगेन द होल वर्ल्ड इज़ रनिंग बैक टू ऑर्गेनिक, कि आप सात्विक खाना खाइए, आप ग्लूटेन फ्री व्हीट लीजिए, वीगन डाइट करिए, व्हाट इज़ इट? दिस इज़ गोइंग बैक टू द रूट्स, यू नो, सब हमारे आप जाके देखेंगे एवरीथिंग इज़ सो स्ट्रक्चरली मेंशन्ड इन वेदास, यू विल बी सरप्राइज्ड, हर चीज़ मेंशन हुई हुई है। तो जितना हम गैजेट्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं, उतना हम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न that loneliness is I think, increasing. yeah, you used a very interesting word that even though we are connected with the outer world, but somewhere we are becoming isolated more internally, and that Mm, is leading to many problems. yeah. But then, what to do with respect to that? We can't change the technology. Technology is going to नहीं, be here. It's not going ऑफ to change. कोर्स टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना है, उसका स्लेव नहीं बनना है ना। नाउ चिल्ड्रन आर गेटिंग एडिक्ट, सो व्हाट इज टेक्नोलॉजी नाउ डूइंग इज, सी, जब भी कोई चीज तरक्की करती है, वैसे जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे, सो हमने कोई रीजन से बनाए थे, हमने जो भी वी हैव मेड लॉट ऑफ डिस्कवरीज, लॉट ऑफ इनोवेशंस, देयर ऑलवेज हैज बीन अ रीजन दैट ये फला फला चीज इस चीज में हेल्प करेगी। बट देन एट टाइम्स उसका एक you know, we also have to struggle with the negatives that it will bring with its own self. For example, अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इज अ गुड वे। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जल्दी से पहुंचना, पहले थिंग वुड हैपन, देन इट विल गेट रजिस्टर्ड, देन 2 दिन लगेंगे, न्यूज़ छप के आती है। आप अभी आप मुझसे लाइव बात कर रहे हैं, आई कैन स्पीक, पीपल कैन लिसन। पर इसका नेगेटिव प्रभाव ये है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। आई एम नाउ एडिक्टेड एंड नाउ आई एम कॉम्पीटिंग एंड नाउ ब्रेन इज अ मसल। जैसे मेरा बाइसेप है, जैसे मेरा ट्राइसेप है, कोई भी मेरा बॉडी का मसल है, सेम इज ब्रेन। माय Yeah. मसल इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ओवर टाइम नाउ विद सो मच कंटेंट एब्जॉर्प्शन। सो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, आइसोलेशन बढ़ेगा, रेस बढ़ेगा। We don't have time to sit back and relax. I think that's one reason why it is getting so much of loaded and pressurized in people these days. सो अच्छा, आपने पूछा था उसके लिए क्या करना भी चाहिए। सो हम एक्सटर्नल वर्ड से हो रहे हैं, बट आइसोलेटेड इंटरनली हो रहे हैं. एग्जैक्टली, सो बेसिकली आपको पहले तो ना, हाउ डू आई से, जब आपका कोई गैजेट बहुत गर्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप उसको बस रख देते हैं साइड ठंडा में। करने के लिए. Yeah. या सो जब आप ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत आइसोलेट हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, दूसरों के आगे मुझे एक फेस रखना पड़ रहा है, अदरवाइज अंदर से मुझे इतनी खुशी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा पॉज लेंगे। सबसे पहली चीज पॉज, ठहर जाइए, लुक अराउंड योरसेल्फ, लुक इनसाइड, एक पेपर पेन लीजिए, उस पे लिखिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको तकलीफ दे रही है। ऐसा, व्हाट इज द फियर दैट यू हैव टू पुट अप अ फेस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल? इज इट फियर ऑफ अबैंडनमेंट? क्या आपको लगता है कि अगर आपका सोशल प्रोफाइल एक तरह का नहीं होगा तो लोग आपको इंक्लूड नहीं करेंगे? आप क्या फिट इन, सिर्फ फिट इन करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, या आप जेन्युइनली करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं? सो ये जब आप छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तो आप देखेंगे कि देर आर लॉट ऑफ फियर्स दैट वी आर वर्किंग अराउंड। हमें डर लगता है कि अगर हमने आज ये नहीं किया, हमने पैसे नहीं बनाए, तो फिर हमारा बड़ा घर कैसे होगा? हमने अगर वो काम नहीं किया जो पार्टनर चाहता है, तो वो हमसे गुस्सा हो जाएगा, हमें छोड़ देगा, डिवोर्स ले लेगा। अगर वो काम किया तो वो हमें दबाने की कोशिश करेगा, बिकॉज़ हमें इक्वालिटी भी चाहिए, फेमिनिज़्म, मैस्कुलिन, जेंडर आजकल दोनों तरफ से होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ फियर्स दैट वी ऑपरेट विद। सो वी हैव टू पॉज़, सिट बैक, थिंक कि क्या चीज़ है जो हमें डरा रही है, जो फ़ोर्स कर रही है कि हम उसको फेस ना करके और चीज़ों के एडिक्शन में पड़ जाएँ, गेम खेलने लग जाएँ। बच्चों को आजकल इतना प्रेशर है पढ़ाई का, ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी एक्सेलिंग इन एवरीथिंग, स्पोर्ट्स में Yeah. भी,
आर्ट में भी, एग्ज़ाम में भी। बच्चे आजकल बेचारे 85% मार्क्स लाते हैं। माय डॉटर इज़ इन शी जस्ट पास्ड 12th, अच्छे नंबर लाते हैं, तब भी परेशान हैं। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज़ दे are competing for my god, teenagers are killing themselves for point one mark, 2 mark. So kahin na kahin we are putting lot of pressure of looking like something apart and not believing in who you are, you know. तो मुझे लगता है हम बहुत प्रेशर डाल रहे हैं अपने आप पर, आने वाली जनरेशन पे, कि आपको ऐसा होना चाहिए टू फिट इन द सोसाइटी। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप पतले होने चाहिए हो, आपके पास फलां-फलां ब्रांड का बैग नहीं है तो आप क्लासी नहीं हो, आपने बाहर कभी अब्रॉड ट्रैवल नहीं किया तो आप गरीब हो। लॉट ऑफ Yeah. थिंग्स। सो वी आर judging. There's a lot of competition. I think that is one major reason to uh, get into stress, and that is why we need to pause and think exactly हमें trouble कर क्या रहा है। But do you think all these things were earlier also? The competition was there earlier also. The people wanted to tell that they are more richer, they have more knowledge, they have been to more places earlier. I think it was there earlier also. Why it has become more of like a epidemic now? See, you're right, there were things earlier, पहले भी स्ट्रेस होता था। ऐसा नहीं है कि पहले लोग हमेशा ही बहुत खुश रहते थे और nobody was facing death or loss or things like that, और हार्ट ब्रेक नहीं होता था, या जिससे आप शादी करना चाहते हैं उससे शादी नहीं हुई, या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं थी। बट हमारा कल्चरल इकोसिस्टम वाज़ वेरी डिफरेंट। पहले हमारे बहुत पीछे चले जाएँ तो गुरुकुल होते थे, उनमें आपको एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रेडिंग नहीं होती थी। इट इज़ नॉट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप 40 बच्चे हैं क्लास में, आप एलिजिबिलिटी रखिए कि हाँ, इसके ऊपर पास, इसके ऊपर फेल, इसके ऊपर फर्स्ट क्लास। जैसे पहले तो 75% डिस्टिंक्शन आ गई, तो लोग, आपको याद होगा, ऐसे बात करते थे कि डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। Yeah. मार्क्स नहीं पूछते थे कि क्या आपके कितने मैथ्स में कितने आए, इको में कितने आए। आपने बोला आपका बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आया, डिस्टिंक्शन आया, सेकंड डिवीज़न आया 50%, है ना? Yeah. तो आपने क्लासेस बनाए थे। आप एक आपकी एक सरकारी नौकरी लग गई। देयर वाज़ सम एलिमेंट ऑफ कंटेंटमेंट। अभी आप देखिए, कहीं पे आप रुकते नहीं हैं। देयर इज़ नो पॉज़, लाइक आई एम सेइंग। आपको हर कुछ चाहिए, हर कुछ, एवरीथिंग यू वांट। आपको जैसे आपको फर्स्ट भी आना है, आप सबको फर्स्ट आना है एक्चुअली। अब 40 बच्चों की क्लास है, तो कैसे, मतलब, और आप देखेंगे आजकल रिज़ल्ट तो 40 में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल यहाँ वो कॉम्पीट कर रहे हैं। सो Yeah. सबको फर्स्ट आना है, एवरीबॉडी। सो आज ईदर यू आर फर्स्ट और यू आर अ फेलियर। द गैप बिटवीन थिंग्स हैव इंक्रीज्ड। या तो आपका बच्चा फर्स्ट है या नालायक है। आप 50% वाले बच्चा कुछ नहीं है। आजकल, मतलब, मैं कहती हूँ 40% आया, 50 आया, 60 आया, एक ही बात है। इट्स सेम। Nobody's going to look at you. You have to be up there. And here is where we start telling them that you have to really, really be up there. And in everything. आजकल आप देखिए बच्चे प्री डायबिटिक हैं बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ जंक फूड। पहले आप देखिए इतना जंक फूड नहीं था। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ एक्सपीरियंशियल ट्रॉमा से होता है। जंक फूड हम खाते हैं, इतने केमिकल्स हैं, हमारे विटामिन डी नीचे हो रहे हैं, B12 नहीं है, बॉडी की स्टैमिना नहीं है। छोटे छोटे 40 के उम्र में यू गेटिंग हार्ट अटैक्स, दीज रेशो बढ़ गया है। सुसाइड्स, छोटे छोटे बच्चों को पता चल गया कि अच्छा सुसाइड वर्ड होता है, ड्रग्स वर्ड होता है। नेटफ्लिक्स, हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट एक्सपोज़ कर दिया है। जैसे कि मैंने बोला कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप Yeah. अगर 5 साल के बच्चे को रोटी बनाने बोलेंगे, मुझे बोलेंगे, और एक बहुत बूढ़ी लेडी को बोलेंगे, तीनों बना लेंगे, तीनों Yeah. अलग-अलग बनाएँगे। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल का बच्चा कुछ भी नहीं बना के लाए, कुछ तो बना के ले ही आएगा, जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं मैप ये वो। बट वो कितना भी आप सिखा लें, जो उसका सीखने का लेवल है, वो गैस को देखना, उसका लॉजिकल ब्रेन जितना डेवलप है वो उतना ही कर सकता है। सो देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। वी आर गिविंग लॉट बिफोर टाइम एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल। तो मुझे लगता है, अगेन आई एम सेइंग दैट किसी ऐसा बोलना कि एक कैटेगरी वाइज़ बोलना कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ हर किसी का लाइफ
का जर्नी अलग है, ट्रॉमा अलग है, उनका वो क्या चाहते, वो किस चीज़ की रेस लगा रहे हैं, वो चीज़ अलग है, उनको क्या तकलीफ दे रहा है वो अलग है। पर एक चीज़ कॉमन है दैट जो भी आपको जहाँ भी तकलीफ दे रहा है, आप वहाँ ठहरे, पॉज़ फॉर अ बिट एंड सी इज़ इट रियली वर्थ इट? मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को अपने 10th 11th के मार्क्स याद होंगे। बट हम जब हमारा बच्चा 10th में है तो बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों क्या मैं मतलब आई एम नॉट डिनाइंग दैट बच्चे अच्छे नंबर ना लाएँ, ऑफ कोर्स पढ़ें, बहुत अच्छे नंबर लाएँ। बट मैं कहती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है 93 आया या 99 आया या 79 आया? अगर आपका बच्चा समझदार है, सब्जेक्ट उसे समझ आ रहा है, पढ़ाई उस जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ की एलिजिबिलिटी हो गई है। So how does it make a difference? Because none of us will remember their marks, but we will Yeah. remember the experience that we are giving them. But take over one more thing which I think is coming up big way is loneliness. Means Yeah. even though we are surrounded by so many people, we have so many things like we talk about gadgets, social media, and everything, but Mm. still the loneliness is increasing day by day. Especially if you look into the young children, they want to be alone. Means at one point Mm. of time, when we think about Europe or America, they used to say that we want space and all those things. Now that space somewhere has become a very, very important thing. So much important that they can be there themselves, maybe for hours, maybe days alone with their Mhm. social media and something like that. Why that is happening? I think एक तो जैसे कि हमने डिस्कस किया गैजेट्स बिकॉज़ वी आर देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ कीपिंग अस बिज़ी। Yeah. हमने बोर होना छोड़ दिया है। वी चिल्ड्रन हैव नो अम, चिल्ड्रन डोंट वांट टू गेट बोर्ड। खाली नहीं बैठ सकते, जो कि बहुत ही Yeah. लाइक आई फर्स्ट थिंग आई सेड पॉज़, ठहराव। खाली बैठना इज़ सो इम्पोर्टेंट। आप जब तक अपने साथ नहीं बैठ सकते, आप कैसे सोच सकते कि कोई और आपके साथ बैठे? आपको पहले खुद को पसंद करना पड़ेगा। तो एक वो है, देन सेकंड चीज़ इज़ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हमारे पास इतने ऑप्शंस हो गए, हमारा एक फ़ोन आता है, हमें लगता है कि जो कि हमने बड़ा रिसर्च करके करा है, लिया है। पर आते ही हमें लगता है अरे वो थोड़ा और रुक जाते तो शायद वो ले लेते, थोड़ा और देख लेते तो शायद ओहो! ये कैमरा रह गया इसका। तो लॉट ऑफ थिंग्स आज हमने गाड़ी रिसर्च करके ली, फिर हम सोचा अरे थोड़ा और रुक जाते इलेक्ट्रिक ले लेते, थोड़ा और रुक जाते ऑटोमैटिक आ जाती, अरे इसका नया वर्ज़न आ जाता, उसका बोनट अलग है, डिज़ाइन अलग है, जो भी। सो देयर इज़ नॉट स्टॉपिंग। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग व्हिच इज़ मेकिंग यू वेरी सेल्फ सेंटर्ड। जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते जाएँगे तो ऑब्वियसली लोनली हो जाएँगे। आप किसी पे इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बिकॉज़ आपको डर लगता है कि अ, आजकल मैंने देखा है व्हेन कपल्स कम टू मी दे आर वेरी पर्टिकुलर कि मेरे फिनांसेस इतने हैं, आपके फिनांसेस क्या हैं? ही इज़ नॉट गिविंग, मैंने इनको इतना गिफ्ट दिया है, इन्होंने मुझे इतना नहीं दिया, या मैं घर का काम क्यों करूँ, ये क्यों नहीं करें? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ हम कॉम्पीट बहुत करने लग गए हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी मुझे पता है कि आजकल डिवोर्स लेके देन आई विल गो मैरी समबडी एल्स, या मैं टाबू नहीं रहा है इतना। सो व्हिच आई एम नॉट सेइंग इज़ अ रॉन्ग थिंग। ऑब्वियसली अगर आपकी शादी काम नहीं कर रही है, कोई गड़बड़ है तो डिवोर्स लेना चाहिए। बट माय पॉइंट इज़ दैट समथिंग व्हिच कैन बी वर्क्ड अराउंड, क्योंकि Yeah. प्रॉब्लम फ्री शादी नहीं हो सकती। प्रॉब्लम फ्री कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। नो नो वन, नॉट इवन अ मदर चाइल्ड, उनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं। सो जिस चीज़ को आप वर्क अराउंड कर सकते हैं, आप उसको भी कभी-कभी ईगो में ले लेते हैं कि मैं क्यों ऐसा करूँ? या मैं अ, मेबी आई टूक द रॉन्ग डिसीज़न, ये आदमी वो है ही नहीं जिससे जो मैंने सोचा था, तो इसलिए चलो लेट्स चेंज। इट्स अ वेरी क्विक कल्चर। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी लोनली बिकॉज़ आप जब तक किसी से डीप लेवल पे इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे, you will not partner that person for good and the bad. You will not be invested in that person. इन्वेस्टेड Yeah. से मेरा मतलब है कि आप जुड़ेंगे नहीं उसके साथ, और जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक ऑब्वियसली आप अकेले हैं, देयर इज़ लोनलीनेस। देन ऑब्वियसली देयर इज़ लाइफ हैज़ बिकम सो क्विक दैट हम कहीं पे वी जस्ट डोंट वांट टू सिट इनटू इन वन थिंग। सो वी वांट कि आज हमारे इतने दोस्त भी होने चाहिए, हमने इतनी पार्टीज़ भी करनी है, हमने ये भी करना है। मैंने कई लोगों को देखा है जो सिर्फ़ पूरा इवेंट ही इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि पिक्चर्स पोस्ट करने हैं हमें। और Yeah. मैंने कई लोगों को देखा है जो ट्रैवल करते हैं, जगह का एक्सपीरियंस नहीं लेते जितना पिक्चर लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो खाना खाने के से ज़्यादा
पिक्चर लेते हैं। तो हम बहुत somehow we are becoming artificial, and that's why we've started relating with artificial intelligence also. We are building chat apps, we are building companions. आप उदास बैठे हैं, आप किसी ऐप से बात कर लीजिए, किसी चैट जीपीटी से बात कर लीजिए. आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट it should not be used, but it should not replace the original. Yeah. It should support the original. Mhm. It should help the original. So जब आप ओरिजिनल को आर्टिफिशियल से रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली देयर बी वेरी यू विल बी वेरी लोनली, बिकॉज हम we are, like I said, we are connected now more technologically, but then we are very isolated because we are in our own rooms, in our own cars, in our own shells, with our own phone, with our own laptop, doing our own thing. But don't you think that when we are doing all that, we are also successful in career, we are also earning a lot of money, we are also creating a lot of branding for us, and so many things are happening because we also say that to be creative, we need our own time, on space, on everything. So Hmm. it's not that the people who are lonely, the people who are going through all this trauma or maybe having social media issues and all that, they are not successful. They are earning a lot of money. They are Hmm. very successful in career. See, दो तरह How की to लोग justify? या Yeah. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आप मुझे पूछ रहे हैं. आई विल से दैट दो तरह के लोनलीनेस, आई वुड सेग्रीगेट लोनलीनेस इनटू टू लार्जर कैटेगरीज. वैसे तो बहुत ज्यादा तरह के, अगर हम डीप डाउन जाएं तो फिजिकल लोनलीनेस हो सकती है. जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, उनको बहुत लोग प्यार करते हैं, उनके बच्चे प्यार करते हैं, पर साथ नहीं रह पा रहे हैं. दैट फिजिकल लोनलीनेस. इमोशनल लोनलीनेस, आप सही साथ घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं समझते, बच्चे भी हैं, सब हैं, लेकिन आप फिर भी अकेले हैं, नो भीड़ में अकेले वाली बात. तो इमोशनल लोनलीनेस है. देन हेल्थ वाइज कभी कभी आप लोनली होते हैं, आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, आप सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, पर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप डर रहे हैं. सो आप अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि आपको फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर टर्मिनल डिजीज है, कैंसर है, तो आपको अगर नहीं है तो आप कुछ भी करके समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसा सोच रहा है. आप एम्पथाइज कर सकते हैं, बट यू कांट बिकम दैट पर्सन. तो वो अकेला पड़ जाए. तो बहुत तरह की चीजें होती है. बट देन दो लार्जर डिवीजन मैं बोलूंगी. एक जो आप बात कर रहे हैं, आई वुड रादर से दैट इज सॉलिट्यूड, क्रिएटिव लोनलीनेस जिसको कहते हैं. जब एक पोएट को या एक आर्टिस्ट को, किसी को अपना टाइम चाहिए, एक सॉलिट्यूड चाहिए, एक जॉनर क्रिएट करने के लिए कुछ कथारसिस चाहिए. आपने कोई कुछ पेनफुल लिखना है तो आप थोड़ा एक एम्बियंस बनाते हैं, आप उस मूड में जाते हैं. दैट इज सॉलिट्यूड. दैट इज यू डूइंग बाय चॉइस एंड यू गोइंग समवेयर एंड देन कमिंग बैक. एक है अकेलापन, दैट इज लोनलीनेस, which is not creative in intent. It is because you are falsely connecting to people. अगर सिर्फ पैसा होता तो रिच लोग, सेलिब्रिटीज तो कभी सुइसाइड ही नहीं करते. सो Yeah. डेफिनेटली मनी इज नॉट द ओनली पैरामीटर. हाल ही में गुड़गांव में दो इतने यंग एज के इन्फ्लुएंसर्स ने सुइसाइड किया. देन वी हर्ड दैट वाई में देयर वाज अ एम्प्लॉय हु हैड कमिटेड सुइसाइड आउट ऑफ वर्क प्रेशर. देन रिलेशनशिप्स की वजह से अभी न्यूज में आ रहे चीजें आ रहे कि वाइफ ने हैरास किया, हस्बैंड ने हैरास किया, उसलिए हमने सुइसाइड किया. सेलिब्रिटीज अभी एक दो, मुझे इतना बड़े वो कॉमेडियन थे, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, he committed suicide. And there are multiple cases, multiple models, multiple cases who are rich, well to do families, educated, and दूर से देख के लगेगा कि ये इन्हें तो कोई कमी ही नहीं है. तो अगर एक पैरामीटर होता है ऐसा जो आपका अकेलापन दूर कर सकता है, तो वो बहुत विजिबली दिखता कि यार इनके पास ना ये कलर की गाड़ी है और ये कभी एक्सीडेंट नहीं करते. बट ऐसा नहीं है. तो डेफिनेटली ये हमारे अंदर है, इट इज नॉट आउटसाइड, दिस इज इनसाइड. Solution is to do so that we can करेक्ट. live a fulfilling life. We can enjoy the life. I know that it's not practically possible that 100% of people will do that, but how the majority of the people can uh, be more, blissful, more enjoying the life,
and something like that. How it is possible? What to do? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इमोशनल फ्रीडम, जो कि हमें सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए। पहले उसको खुद पे लाना, अमल में लाना चाहिए। इमोशनल फ्रीडम से मेरा मतलब है कि आप अपने मन की बात एज़ इट इज़ कर सकें सामने वाले से। वो सामने वाला आपका हस्बैंड हो, बच्चा हो, टीचर हो, कलीग हो, वर्क प्लेस हो, घर हो, मदर इन लॉ हो, आपके अपने पिता हों, जो भी हो। आप अपने मन की बात एज़ इट इज़ कह सकें। उधर से भी, इधर से भी, दैट इज़ इमोशनल फ्रीडम। कई बार आपने देखा होगा, वी हैव इन आवर एशियन कंट्रीज़ और बहुत जगह पे वी हैव जेंडर बेस्ड ट्रॉमा। आपको शुरू से छोटी-छोटी बातों पे सुनने मिलता है कि ये घर आपका नहीं है, ये घर आपका न। आप सोच के चलिए कि एक छोटे बच्चे को जो 10 साल का है, 8 साल का है, आप उसको बार-बार बता रहे हैं कि आपका ये, तूने तो एक दिन चले जाना है, तेरा घर नहीं है ये। कितना उसमें वो अबैंडनमेंट, फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट डालेगा कि मुझे तो कोई भी घर से निकाल सकता है, मेरा घर ही नहीं है ना? तो ये इमोशनल फ्रीडम नहीं है, कंडीशनल फ्रेमिंग है कि अगर तुम अच्छे से रहोगे, तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। ऐसा रहोगे तो वैसा करोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर शुड नॉट बी रिवॉर्ड सिस्टम। देयर शुड बी रिवॉर्ड सिस्टम इन द सेंस दैट आपने एक माइलस्टोन अचीव करा, आपको एक रिवॉर्ड मिला। पर आप एक डे टू डे पे आपने एक बेसिक इंसान से बदल के, आप, आपका मन नहीं है पढ़ने में, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप आर्ट में जाना चाहते हैं, आपका मन ही नहीं है शादी करने का, या आपका एक पर्टिकुलर जेंडर्स के साथ शादी करने का मन है, या आपका बच्चे नहीं करने का मन है। सो जस्ट बिकॉज़ आप एक तरह के इंसान बनना चाहते हैं, उस पे रोक है लगी हुई, और रोक तो लगी है आपको, हिम्मत ही नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ये कहने की कि मैं ये करना नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी 21 साल की हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं 24 साल की हूँ, मैं अभी बच्चा नहीं करना चाहती। मैं अपना टाइम लेना चाहती हूँ। ये आप कई बार कह ही नहीं पाते। Yeah. मना होना तो एक बात है। तो आप अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर लेकर एक चीज़ चलते जा रहे हैं। सो देयर इज़ नो इमोशनल फ्रीडम, वी आर फ्री, वी से हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम आज़ाद हैं। हम कहाँ आज़ाद हैं? हम इतने ज़्यादा डरते हैं, वी आर सो स्कैर्ड ऑफ थिंग्स कि कोई हमें छोड़ जाएगा, हमारे पैसे खत्म हो जाएँगे, हम पढ़ाई में फेल हो जाएँगे, हम भूचाल आ जाएगा, कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ये, सो वी आर ऑलवेज़ इन क्राइसिस। सो जब इतना डर के साथ जी रहे हैं और ऊपर से हम जो है वो बनने की भी इजाज़त नहीं है। अभी हमें इमोशनल फ्रीडम नहीं है, हम एक-दूसरे को बता नहीं सकते कि यार, तुमने उस दिन मुझे फलाँ बात बोली थी, मुझे बुरी लगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, यू शुड बिहेव इन अ सर्टेन वे। मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ कि तुम लड़की हो, और अब मेरी शादी हुई है, मैंने सोचा था अब मैं बड़ी हो जाऊँगी, अब मेरा अपना घर होगा, अभी भी मुझे ये जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। मैंने सोचा था कि पढ़ाई 12th के बाद खत्म हो जाएगी, मेरा काम हो गया है, पर ये तो कभी खत्म नहीं हो रही। अब मैं अपने बच्चों का स्कूल भी देखूँ, टॉप क्लास है, मैं आगे प्रमोशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, मुझे अब इंटरनेशनल ट्रैवल भी ले जाना है फैमिली को। अगर मैं कमाऊँगा नहीं, ज़्यादा खा लूँगा, मोटा हो जाऊँगा तो लोग हँसेंगे मेरे पे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम रहने की परमिशन नहीं दे रहे हैं हम। सो Solution can what is the possible solution? What to do? पॉसिबल सॉल्यूशन इज़ दैट, कुछ-कुछ जैसे हमारे थेरेपी में, मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ, मे बी इट विल हेल्प योर लिसनर्स आल्सो। जैसे आप एक फैमिली है, या आप एक पेरेंट चाइल्ड हैं, या आप कपल भी हैं, तो आप हफ्ते में 1 दिन रखिए। हफ्ते में 1 दिन रखिए जहाँ पर आप एक-दूसरे को 10-10 मिनट का टाइम देते हैं, जिसमें हर इंसान की 10 मिनट बोलने की बारी आएगी। सिर्फ़ बोलना है उसे, और आपको सिर्फ़ सुनना है। अपना ओपिनियन नहीं देना, अपना सॉल्यूशन, जजमेंट पास नहीं करना। सपोज़ मैं बता रही हूँ कि आपने मुझे बचपन में बहुत मारा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमारा नेचुरल सा एक वो होगा कि अरे तुम भी तो ऐसे करते थे ना, इसलिए ऐसा हुआ। नो, सुनना, लिसनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पीपल ऑफ़न फील अनहर्ड। उन्हें लगता है कि मैं कुछ भी कहूँगा, कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है। मेरी बात पहुँच नहीं पा रही है सामने वाले तक। मैं कहना कुछ चाहता हूँ, कहता कुछ हूँ। समझाना कुछ चाहता हूँ, समझ में कुछ आता है। मेरा ये मतलब ही नहीं था बात का। सो दैट वन एक्टिविटी, जहाँ आप हफ्ते में 1 दिन बैठें और एक 10 मिनट एक्टिविटी रखें कि 10-10 मिनट आपने जो भी आपको बोलना है,
आपने बोला और आप वहां से उठ गए, बस एक लिसनिंग एक्टिविटी। या आप 10 एक और दूसरी चीज कर सकते हैं, आप 10 मिनट रोज के रखिए, एवरी डे 10 मिनट्स, जहाँ पे एक आप अनप्रोडक्टिव काम करते हैं, माने स्किन केयर, जिसपे बिना काम चल सकता है। ग्रोसरी शॉपिंग नहीं, क्योंकि सब्जी नहीं लाए तो काम नहीं चलेगा, पढ़ाई नहीं की तो काम नहीं चलेगा, यूटिलिटी आइटम भी नहीं। वो चीज कि आज मैंने अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो काम चल जाएगा, आज मैंने अपने पुराने दोस्त से बात नहीं करी तो काम चल जाएगा, आज मैंने बैठ के थोड़ी आर्ट अपने मन के हिसाब से नहीं किया तो काम चल जाएगा मेरा, आज मैंने एक वॉक पे नहीं गया तो काम चल जाएगा। ये काम, ऐसे 10 मिनट के छोटे छोटे काम अपने लिए, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जिसकी पार्टनर ना चाहिए हो। कोई पार्टनर है आ गया बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं वो काम। मॉइस्चराइजर लगाने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। सो Yeah. अनप्रोडक्टिव 10 मिनट every day, give it to yourself, start from there, that will pause you for 10 minutes, or deep breathe, which is very important. It opens your cortex, जो आपको logical thinking ज़्यादा करने की, it gives you more decision making power and logical thinking. So yeah. So, Dr. Bhutani, if I just sum up everything, what all we discussed, so we started with talking about the problem statement that why there's a depression these days, why there's a loneliness these days, why there are so many mental issues which are there, which were actually there earlier also, but the percentage has increased drastically. Then we talked about the possible reasons for that, wherein we talked about the social media a lot. We also talked about that we are all in competition, that we are just thinking that how much money that we can earn, how much good marks that we can get, how we can tell people that how good we are looking. And then it is creating a lot of challenges, a lot of problem. It is leading to divorces, it is leading to suicide, it is leading to a lot of many things. Especially one important thing which is happening is loneliness, where I think you very rightly you talked about the difference between loneliness and solitude. That nothing wrong in spending time with yourself, but then when you are alone because you don't want to be with the people because you're not feeling comfortable, that's a problem. And I think in the last you shared two very interesting possible solutions, that let there be a time in a family where everyone gets an opportunity to speak for some time without any justification, without any opinion, and then do something which is not going to result in some productive thing, not going to help you to earn money, not help you to earn some knowledge, but just something. Then you will have some unproductive time, that time for yourself. And maybe that will break the cycle. Wonderful. Thank you very much, Dr. Bhatani. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me over. I hope it helps. Thanks. Thank you.